So today now we begin the next chapter. It's a part of limit, like we have got first limits and then differentiation. Whether you say differentiation or derivative, both is same thing. So now we are starting the next topic, and that is differentiation or derivative, we can say. So first of all, everyone write down the formula which is there in this particular chapter, differentiation. So everyone write down the formula. So everyone, these are the formulas, clear? Copy down, and these are the properties, okay? Everyone copy down and explain you what is this. Just you have to copy down right now, okay? सर सबका स्टार्टिंग में आप डी बाई डी एक्स लिखा है ना? Yes, exactly. ये सब डी डी एक्स इसको ऐसे रीड करना है. डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ऐसे रीड किया जाता है, ठीक है? This is the chapter where, I mean, like of class 12 we can say. This is the chapter in class 12. ये चैप्टर में हम लोग क्लास 12 में लगभग 2 महीना टाइम अपना स्पेंड करेंगे ये चैप्टर में. बट राइट नाउ इन क्लास 11 यू हैव जस्ट इंट्रोडक्शन. जैसे कभी भी तुम लोग अगर अपना पूरा एकेडमिक स्टार्ट किया होगा तो नर्सरी में क्या पढ़ा था? जस्ट एबीसीडी. तो ये एबीसीडी है, मतलब दिस इज जस्ट 0.1% ऑफ द टोटल सिलेबस इन दिस चैप्टर डिफरेंशिएशन यू हैव. डिफरेंशिएशन का तुम लोग सिर्फ 0.1% आज पढ़ने वाला है और कुछ भी आज नहीं पढ़ेगा. बस ऐसे इंट्रोडक्शन, मतलब बस ऐसे इसको टच करेंगे हम लोग और कुछ नहीं. और इसके डिटेल में हम लोग, इसका डिटेल क्लास 12 में है. तो आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हाउ टू डिफरेंशिएट, नॉट व्हाट इज डिफरेंशिएशन. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओनली इन क्लास 11 you must know how to differentiate and nothing more than that. The major part, that is 99.99% will be covered in class 12 because अभी सिलेबस ही उतना है. अभी मैं अगर उतना बताऊंगा तो उतना मतलब होगा नहीं उतना, ठीक है? और टाइम भी बहुत लग जाएगा. जितना सिलेबस में है उतना पे अगर हम फोकस करें तो अभी सिर्फ 0.1% है, उतने पे ही फोकस करते हैं, ठीक है? और क्लास 12 में जो सिलेबस है क्लास 12 में देखा जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. आफ्टर द फॉर्मूला लेट अस बिगिन नाउ डिफरेंशिएशन. नाउ this chapter differentiation. Now first of all let me give you the definition of this chapter differentiation first. कि ये definition क्या होता है, ये differentiation का मतलब क्या होता है, एक मैं definition देता हूं पहले. So we can say that the rate of change of y, where y is a dependent variable with respect to the change in the value of x, change in the value of x, where x is independent variable is called differentiation. I'm just writing DIFF. And it is written as, that is dy by dx. How do we write? Mathematically we say that it is dy by dx. जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? dy by dx. अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल तुम लोग के दिमाग में ये राइज हो रहा होगा कि जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, what is this dependent variable and independent variable? I have to clear this concept first. So just note down here everyone. Suppose you have y equal to fx. Suppose you have y equal to fx, a function. Let's take an example. Suppose you have y equal to 2x plus 1. Now we are finding that when the value of x is 0, then the value of y is how much? We find that it is 0 to just 0 plus 1. It is 1. When the value of x is 1, then the value of y is 2 1 is 2 plus 1, 3. When the value of x is 2, then we find that
the value of y is 2 to the 4 plus 1 5. Now what we are finding here, we are finding that y is changing, y का जो चेंज है, y का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ तो? वो x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। y खुद ही चेंज नहीं हो रहा है, y का वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। That's why we say that if I write y, if I write an equation in the form y as a subject variable and y equal to fx, then here we find that y is a dependent variable and x is an independent variable because x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x के वैल्यू किसी पे डिपेंड कर रहे हैं नहीं, हम रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं। मैंने जैसे 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, तुम रैंडमली कुछ भी 10 दे सकते हो, 20 दे सकते हो। तो बताओ तो x का वैल्यू किसी पे डिपेंडेंट है? किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बट y का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? x क्या होगा उस पे डिपेंडेंट है। एंड दैट्स व्हाई इफ यू राइट y इक्वल टू fx, here y represents dependent variable. And y is a function of x. Y is a function of x. Now x is changing independently. That's why x is called independent variable. x क्या है? Independent variable है, क्योंकि वो एकदम छूट है, उसको कुछ भी हम ले सकते हैं x का वैल्यू, लेकिन y कुछ भी हो सकता है नहीं, y जो हम x लेंगे उसके हिसाब से y का वैल्यू आएगा। So that's why y is a dependent variable and as y is equal to f of x, x is independent variable. Now अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो y का वैल्यू 1 से 3 बन गया, ठीक है, y का वैल्यू फिर 3 से 5 बन गया। कोई बता सकता है चेंज कितना है? बताओ तो, मेजर करो तो चेंज कितना है बताओ तो, एक बार मेजर करके बताओ सर। 2 है, वेरी गुड। वी आर फाइंडिंग दैट 3 minus 1 कितना है? 2। 5 minus 3 कितना है बताओ तो? 2 है। अब एक बात बताओ, x का वैल्यू कितना चेंज हुआ? x का वैल्यू 1 यूनिट चेंज हुआ। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे y x पे डिपेंडेंट है, इस मेजर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली? ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो एक बार, ऐसे dy by dx। तो ये dy by dx क्या है बताओ तो? It is a method of measuring, मतलब it is a way of representing the measurement of what? Measurement of change in y with respect to the change in the value of x. Because मैं ये word यूज कर रहा हूँ with respect to। ये क्यों वर्ड यूज करना विद रिस्पेक्ट टू? बिकॉज यहाँ पे y डिपेंडेंट है और y का वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। इसीलिए x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, dy by dx, और dy by dx में क्या लिखूंगा? इट इज 3 minus 1 2 divided by 1। सो व्हाट इज 2 by 1? इट इज 2। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y with respect to the change in the value of x is 2 units? क्या मैं बोल सकता हूँ? ऐसे बोल सकता हूँ। देखो तो ये चीज हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है बताओ तो? एक तरीके का हम मेजर करते हैं, क्या चीज, क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग? मेजर कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to the another quantity. Here we are measuring the change in the value of y, where y is one quantity which is dependent on the change in the value of x. x पे डिपेंड कर रहा है, और ये मेजरमेंट, ये चेंज क्या है यहाँ पे? 2 यूनिट्स है। हर बार अगर x का वैल्यू 1 यूनिट चेंज होगा, हर बार x का वैल्यू अगर 1 यूनिट चेंज होगा, तो फिर y का वैल्यू कितना यूनिट चेंज हुआ? 2 यूनिट चेंज हुआ। तो मैंने बस एक एग्जांपल से तुमको बताया कि देखो डिफरेंशिएशन में हम यही चीज मेजर करते हैं। बहुत डीप है कंसेप्ट, लेकिन अभी मैं फिलहाल तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर तुम इतना समझ गए तो हम इस चीज को आगे लेके बढ़ सकते हैं। कैसे? लिसन, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, लिसन ये स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं तुमको ये बोलूं कि आई गिव सपोज 10 चैप्टर्स टू यू टू सॉल्व, ठीक है? तुमने क्या किया? सपोज एक स्टूडेंट ने जिसका नाम था ए, मैंने 10 सपोज 12 चैप्टर्स दिए मैंने सॉल्व करने के लिए। एक स्टूडेंट का नाम है ए, जिसने क्या किया कि हर एक दिन उसने 3-3 चैप्टर सॉल्व करना शुरू कर दिया। हर एक दिन उसने 3-3 चैप्टर। तो पहला दिन उसका 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ, दूसरा दिन तक कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ? 6 चैप्टर, तीसरा दिन तक कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ? 9 चैप्टर, और 4th डे तक उसका कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया? 12 चैप्टर, और खत्म हो गया उसका वर्क। तो एक बात बताओ, अगर मान लो हम कंप्लीशन ऑफ चैप्टर को सी से डिनोट करें, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ चैप्टर को सी से डिनोट करें और डे को डी से डिनोट करें, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? चेंज, आई मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, आई मीन
जो कंप्लीशन ऑफ चैप्टर जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द डे इज हाउ मच 3 यूनिट्स। क्या मैं बोल सकता हूं? देखो तो एक बार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट ए अगर पहला दिन 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया, दूसरा दिन तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तीसरा दिन तक 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, चौथा दिन तक 12 और खत्म हो गया उसका, तो अगर देखें तो उसका चेंज क्या है बताओ तो, कि किस रेट में वो अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक दिन वो 3-3 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो लिखेंगे कैसे? इसका लैंग्वेज क्या है? डिफरेंशिएशन एक तरह का लैंग्वेज है जो हमको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का सिस्टम देता है कि हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ chapter completion with respect to day is how much? 3 का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो हर एक दिन, देखो हर एक दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहा था। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं कि स्टूडेंट बी ने पहला दिन 2 चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरा दिन तक 4 चैप्टर कंप्लीट किया, तीसरा दिन तक 6 चैप्टर कंप्लीट किया, तो बताओ तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? बताओ तो। अगर सी का मतलब हुआ 2 होगा, वेरी सिंपल, इट्स dc by dd equals 2। That's all. समझ में आया? तो तुम याद करो, कोई बता सकते हैं एक्सेलरेशन का डेफिनेशन मुझे बता सकते हैं यहाँ पे क्लास 10 में जो तुम लोग पढ़ा था? बताओ तो, कोई भी बताओ तो। एनीवन? सर रेट इन चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी, मोर परफेक्ट। द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज dv by dt? कोई गलत? वेलोसिटी का चेंज को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इस कांसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन बोलते हैं। बस यही तो है। समझ में आया तो बात? अगर मान लो हम ऐसे बोले कि मेरे पास सपोज एक बॉटल है, और बॉटल का मैं बॉटल में देख रहा हूं कि इसमें मैंने पूरा पानी भर करके और इसको धूप में रख दिया, ठीक है? इसमें से वाटर इवेपोरेट कर रहे हैं, इससे वाटर इवेपोरेट कर रहे हैं। अगर मान लो मैं ये बोलूं कि हर 1 सेकेंड में इसमें से 2 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इवेपोरेट कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएशन में नहीं लिख सकता हूं? देखना एक बार। The rate of change of volume with respect to time is 2 centimeter cube per second। देखो तो एक बार, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसका जो बॉटल के अंदर जो पानी है, पानी इवेपोरेट कर रहा है। मतलब क्या है? इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब वॉल्यूम मतलब इस कैपेसिटी इसका नहीं, मतलब वाटर उसके अंदर से वो इवेपोरेट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम वाटर का वो कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या है बताओ तो? 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब हर 1 सेकेंड में इतना पानी इवेपोरेट कर रहे हैं। और हमको इसको क्या चीज से शो करना चाहिए पता है? माइनस से। माइनस का मतलब क्या हुआ पता है? इसके अंदर वाटर इवेपोरेट कर रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। और अगर इसमें वाटर फिल करता, मैं हर 1 सेकेंड में वाटर में 2 सेंटीमीटर क्यूब फिल करता टैप से हर 1 सेकेंड में, तो हम इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? प्लस 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बस एक्चुअली तुमको एक चीज समझ लेना है यहाँ पे, जितना मैंने तुम लोगों को बताया ना, इतना बहुत लोगों को शायद में अगर सिर्फ 11 का पढ़ रहे तो इतना बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। मैं जितना तुम लोगों को बता दिया क्या कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? वी आर सिंपली मेजरिंग, ये चैप्टर में कर क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ y दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखना, जो हम मेजर कर रहे हैं, जिसका रेट ऑफ चेंज मेजर कर रहे हैं, वो हमेशा डिपेंडेंट होना चाहिए दूसरे वाले पे। ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, नीचे वाला वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट है। समझ में आया तो बात? With respect to the change in the value of x, that is independent variable, is called differentiation, that is written as dy by dx. All right students, इतना जानना sufficient है। अब हम लोग क्लास अगर 12 होता तो मैं बहुत डीप में भी पूरा कंसेप्ट समझाने में 1-1.5 घंटा टाइम लग जाता है, लेकिन अभी हम इतना तक ही रोक देते हैं। अब हम बताएंगे how to differentiate, that's all, how to differentiate, where directly I'll use the formula to differentiate an expression, that's all. Clear? Now let us begin that part. अच्छा, तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा कुछ पढ़ा है अभी तक? बताओ तो कोई। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ऐसा कुछ कांसेप्ट पढ़ा? हाँ सर, पढ़ चुका थे। और अच्छा है, रिलेट कर पाऊंगा मैं। एक मिनट, मैं अभी कॉमर्स में भी रिलेट कर देता हूँ इससे, इस चीज को। पता है, जब तुम लोग आगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ेगा क्लास 12 के बाद, अगर कोई इकोनॉमिक्स को लेके पढ़ाई करता है तो तुमको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स का बहुत सारा कंसेप्ट तुम लोग डिफरेंशिएशन से बहुत इजीली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत बेटर तरीके से। तो कोई बताओ तो अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? बताओ, मार्जिनल कॉस्ट बताओ, बताओ। यस प्लीज, जस्ट इकोनॉमिक्स टीचर नहीं है, आराम से अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो, मैं कहीं इंटरप्ट नहीं करूंगा। बोलो। यस बताओ कोई।
मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बताओ? अगर तुम लोग पढ़ा है तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पढ़ा है तुम लोग 11 में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू? प्लीज जस्ट कैन यू रिस्पॉन्ड वंस प्लीज। रिक्वेस्ट तुमने बोला था, क्या तुम लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर हम सर पढ़ा तो है लेकिन मेरे को याद नहीं। अच्छा, तो फिर अगर किसी को याद नहीं है तो हम इसके ऊपर ज्यादा क्योंकि वो टॉपिक पता नहीं है इकोनॉमिक्स में, तो हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। छोड़ो, पता होता तो मैं रिलेट कर पाता, लेकिन अभी छोड़ो। Now see, suppose you are given, let's take y equal to x to the power 4 और क्वेश्चन है फाइंड dy by dx। क्या है क्वेश्चन हमारा? फाइंड dy by dx। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो अभी हम लोग बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे देखने में। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला ddx of x to the power n। Now please try to understand when to use this formula। ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि कब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए ddx, ध्यान देना ddx जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो चीज यहां पे एज अ बेस होना चाहिए और पावर पे कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा n into x to the power n minus 1। ये होगा आंसर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा। तो क्या है, लेट्स सी, ये हम फॉर्मूला पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो पहले तुमको लिखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग y WRT शॉर्ट में लिख रहे हैं किसके लिए? विथ रेस्पेक्ट टू के लिए, विथ रेस्पेक्ट टू x। सो वी गेट, ऐसे लिखेंगे फिर ddx ऐसे। तो हम यहां पे y को डिफरेंशिएट करने वाले हैं और y क्या है? y एक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक टर्म है। y एक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है और वो टर्म क्या है? x स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ddx of y is written as dy by dx। Actually this is just to show the process। मतलब ये हम लोग ddx और y को dy by dx हर समय लिखते क्यों है? सिर्फ ये बताता है कि राइट साइड में हो क्या है। राइट साइड में जो कर रहे हैं वो क्या है? वो dy by dx है। तो dy by dx मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं y का चेंज को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बात बताना, ddx of x square, टेल मी व्हाट इज ddx of x square। तो यहाँ पे n की जगह पे 2 है और x तो x ही होना चाहिए, x के जगह पे 2 3 4 नहीं होना चाहिए, e नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या आएगा आंसर इसका? व्हाट इज ddx of x square? इट इज 2 दैट इज n, क्लियर, इनटू x to the power 2 minus 1। ऑलराइट एवरीवन, जस्ट चेक द फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो ddx of x to the power 2 क्या हो जाएगा? देखो 2 into x to the power 2 minus 1, ठीक है। 2 into x to the power 2 minus 1, and what is the answer? We find that dy by dx is 2 into x। This is your answer, that's all। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, नंबर 2। Suppose we have y equal to x to the power 5 plus x square plus x। सपोज ये सम और मैं इसको डिफरेंशिएट, हाँ टेल मी। सर वो फर्स्ट स्टेप में आप खुद से वो ddx लगाए हैं? हाँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंशिएट। क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंशिएट, या ये लिखा जा सकता है फाइंड dy by dx। मतलब क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि फाइंड dy by dx, तो मुझे डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो मुझे खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना आगे इस सम में हम लोग कैसे करेंगे। ये सम में हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमको ये गाइड करेगा कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है। कौन सा प्रॉपर्टी है वो देखिए, ddx of u plus minus v plus minus w and so on can be written as ddx of u plus minus ddx of v plus minus ddx of w and so on। तो देखना एक बार इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करेंगे हम यहाँ पे।
तो हम लोग को यहाँ पे dy by dx निकालना है। तो dy by dx का मतलब क्या होता है? मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये वाला स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। तो v क्या है, हमको क्या मिलेगा डिफरेंशिएट करके? ऐसे देखो ddx ऑफ y। अब y क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें 1 2 3 टर्म्स है। y एक एक्सप्रेशन है जिसमें 1 2 और 3 टर्म्स है। ddx ऑफ y को हम लोग dy by dx लिख देंगे हर सामने, बिकॉज ये सिर्फ ये बताता है कि हम लोग राइट साइड में कर क्या रहे हैं। राइट साइड में ये क्या कर रहे हैं? वी आर डिफरेंशिएटिंग y, ये y विद रिस्पेक्ट टू x, बस इतना इंडिकेट करता है। इसीलिए हमेशा ddx ऑफ y को dy by dx लिखते हैं। अब देखो इस एक्सप्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर एक टर्म होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन कितना टर्म है बताओ तो? 1 2 और 3। तो ध्यान देना, जब भी हम लोग एक एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें एक से ज्यादा टर्म्स होगा तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? सारे टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, सारे टर्म्स को अलग अलग। लिमिट्स में भी ऐसा होता था, यहां पे भी ऐसा ही है। सारा टर्म्स को अलग अलग करके हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में ddx ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस है तो प्लस दे देना, ddx ऑफ सेकेंड टर्म प्लस है तो प्लस दे दो, ddx ऑफ थर्ड टर्म। ठीक है, अब बताओ मुझे ddx ऑफ x टू द पावर 5, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ddx x टू द पावर 5। n कुछ भी हो सकता है, n 4 5 6 2/3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये x है तो ये भी x होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तो फॉर्मूला ये है। तो बताओ तो तुम लोग इसका आंसर क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में? यहां बोलो। So 5 into x to the power 4. It is 5 into x to the power 5 minus 1, which is 4. All right. What is ddx of x square? बताओ। So 2x. 2x to the power 2 minus 1, that is पावर में 1। इसके पावर पे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 into x to the power 1 minus 1। And what is 1 minus 1? 0. Anything to the power 0 is what? 1. So what is the answer? Second number का आंसर क्या है? dy by dx equals to 5x to the power 4 plus 2x plus 1. क्यों? क्योंकि anything to the power 0 is 1 and 1 into 1 is how much? 1. So this is your answer. Is this clear everyone? तो मैंने दो एग्जाम्पल दिखाया तुम लोगों को। ठीक है, अब मैं और दो सम ऐसा दे रहा हूं, तुम लोग मुझे करके दिखाओ। ठीक है, बस एक ये सब तीसरा नंबर करके दिखाओ और कुछ नहीं। ठीक है, फटाफट। Now see everyone, I just एक बार मैं इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ध्यान देने। So I have done number 1 and number 2. Sum number 1 में क्या देखना है? Suppose we have y equal to x square, और इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड डिफरेंशिएशन, या क्वेश्चन में लिखा जा सकता है फाइंड dy by dx. So how to do this? Listen in. सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग y with respect to x. So डिफरेंशिएटिंग y with respect to x मतलब जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। जैसे हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y ब्रैकेट के अंदर आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे x नीचे लिखना होगा। ठीक है, अब देखो y एक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ कितना टर्म है? एक ही टर्म, और यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला फॉर्मूला ddx ऑफ x टू द पावर n वाला। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज n into x to the power n minus 1. So if you see this formula, it is n that is 2 into x to the power 2 minus 1. So this is the answer. उसके बाद मैंने सेकंड सम एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार बस ब्रीफ कर दे रहा हूं बिकॉज़ इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, क्लास वाज नॉट रिकॉर्डेड, सो मैं जस्ट ब्रीफ कर दे रहा हूं फटाफट। देखना एक बार। नंबर 2 में ये क्वेश्चन है, इसको हमको डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालना है। सो नोट डाउन एवरीवन। सो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो तुमको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद ddx ऑफ y। नाउ y इज एन एक्सप्रेशन having how many terms? 3 terms. So how to differentiate an expression having more than one term? अगर हमको एक से ज्यादा टर्म्स को डिफरेंशिएट करना होगा तो सारा टर्म्स को अलग-अलग करके डिफरेंशिएट करना। तो ये हो जाएगा ddx ऑफ फर्स्ट टर्म
प्लस है तो प्लस दे देना ddx ऑफ सेकंड टर्म, प्लस है तो फिर प्लस दे दो ddx ऑफ थर्ड टर्म। ना यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर 5, इट इज 5 into x to the power 5 minus 1, that is 4. What is ddx of x square, it is 2 into x to the power 2 minus 1, all right. And what is ddx of x, it is 1, क्योंकि पावर में 1 है तो 1 into x to the power 1 minus 1. Anything to the power 0 is how much? 1. So 1 into 1 becomes 1. This was the sum I have given you all to do. So I hope you all have completed this sum. I'm writing the answer. So it is 7x to the power 6 minus 3x square plus 2 by 3 x to the power minus 1 by 3. Please check once again. Check once. ये आंसर आया? हाँ सर। सर हम वो x to the power minus 1 by 3 को 1 by x cube लिख दिया। It's not required. Correct, but it is not. चाहे तो छोड़ सकते हो। So मैंने क्या किया एक्चुअली, जो लोग इस वीडियो को देखेगा मैं बता देना चाहता हूँ, ये चीज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, भूल गया था, तो मैंने करने के बाद इसको फटाफट मैंने एक बार ब्रीफ कर दिया, तो देख लेना तुमको, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पूछ लेना बाद। नेक्स्ट now everyone note down. Now write down ddx of x in the formula. ddx of x को एज अ फॉर्मूला याद रखो, ये 1 होगा, ठीक है। क्यों होगा वो अभी हम लोग ने देखा, 1 लिख दो डायरेक्ट। अब मतलब इसके लिए तुमको दिखाने का जरूरत नहीं है, मतलब लर्न दिस एज अ फॉर्मूला नाउ, क्लियर। नाउ हाउ ddx of x is 1, we have seen just now in the sum also, क्योंकि यहाँ पे x के पावर तो कुछ नहीं होता, मतलब 1, और जब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 into x to the power 1 minus 1, anything to the power 0 is 1 and 1 into 1 becomes how much, 1. अब इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लो कि ddx of x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग एक सम करेंगे जहां पे हम एक और प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करेंगे, सम मतलब हम यूज करेंगे सम, तो क्या है, इट इज ddx ऑफ कांस्टेंट इनटू fx। का मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, fx स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, तो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम एक एडिशनल मतलब प्रॉपर्टी को यूज करके ये सम को सॉल्व करने वाले, ठीक है। एंड सो द नेक्स्ट सम इज नंबर 4. The question is y equal to 5x to the power 3 minus 7x square plus 8x minus 9, और हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज ddx of constant equals to 0. So these are the three formulas we are going to apply, and this is the property, और एक और प्रॉपर्टी मैंने दे दिया था, ये दो प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, तो सबको ध्यान से कर देगा ये सब, ओके। लिसन, तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव देखो, क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया रहेगा और क्या बोला जाएगा, फाइंड dy by dx, या क्या लिखा जा सकता है, डिफरेंशिएट, बात बराबर है, दोनों में एक ही चीज करना है। क्या करना है देखो एक, मतलब हमको पहले लाइन में लिख देना पड़ेगा कि अब हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये ऐसे लिख देना पड़ेगा। So we have ddx of y, और y is an expression, देखो y is an expression having how many terms, 1 2 3 4 terms. Now अब मैं क्या कर रहा था, अभी तक क्या कर रहा था, तुम लोगों को भी ऐसे बोला करने के लिए कि पहले ये स्टेप्स दिखाना और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको स्प्लिट करके दिखाना, मतलब इस तरह अलग अलग करके दिखाना। अब इतना दिखाने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट क्या करना है, तुमको तो समझ में आ गया ना कि स्प्लिट किया जाता है, अब डायरेक्ट कर देना तुम ये चीज को, ये स्टेप दिखाना नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड।
डायरेक्ट क्या करना है, ddx ऑफ y, और y जो एक्सप्रेशन है उसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, तो सारे टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो अभी, मतलब अलग अलग ऐसे कर दो, स्प्लिट कर दो। वो जो एक स्टेप जो दिखा के फिर नेक्स्ट स्टेप में ये प्रॉपर्टी लगाना होता है वो मत दिखाओ, डायरेक्ट रखिए चीज। Alright everyone, okay, next ddx of y is written as dy by dx। समझ में मैंने क्या बोला, y एक एक्सप्रेशन है तो वो पूरा ब्रैकेट के अंदर लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग करने से बेटर क्या है, तुमको पता चल गया, अब डायरेक्ट कर दो, ठीक है, समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो ये प्रॉपर्टी गाइड करेगा इस तरह का सिचुएशन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। इस तरह का अगर सिचुएशन है तो क्या करना, तुम कांस्टेंट को बाहर रख देना और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना। क्या करेंगे फिर हम लोग, कांस्टेंट को बाहर रख देंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट को बाहर रखो और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट को बाहर रखो और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना। अगर खाली कांस्टेंट है, अगर खाली कांस्टेंट है तो खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो, यस टेल मी, व्हाट इज ddx ऑफ कांस्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, लिखा है तो ddx ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर खाली कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, क्या है आंसर, 0। और यहां पे क्या होगा, अब डिफरेंशिएट होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, फॉर्मूला नंबर 1, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज n दैट इज 3 x टू द पावर 3 minus 1, 2 into x to the power 2 minus 1। ddx of x अब स्टेप शो नहीं करना है, ddx of x डायरेक्ट क्या लिख देना है, 1 लिख देना, ठीक है। तो सबको तो समझ में आ रहा है, लिख दिया 1, ओके। ये हो गया 5 3 जा 15 x स्क्वायर, ये हो गया 7 2 जा 14 x, ये हो गया 8 1 जा 8, therefore dy by dx is this one, this is your answer। ये समझ में आ गया, आराम से कॉपी करो पहले, और मैं और समझ रहा हूं, तुम लोग अभी खुद करो। नंबर 5, everyone do this one। I'm just going to write down the answer here, okay? So the answer is dy by dx equals to 2x to the power 2 minus 21x square plus 4. This is your answer. Please everyone check whether सर इसको माइनस 19 कंबाइन नहीं कर सकता है, क्या कर सकते हैं, माइनस 19 स्क्वायर और 21x स्क्वायर को माइनस 19x स्क्वायर। एक्चुअली आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, एक सेकंड।